Chapter 1, Matter in our surroundings. The next topic is can matter change its state. है ना, तुम सबने देखा होगा मैटर स्टेट चेंज करता है या नहीं करता है. एवरीबडी विल से यस. है ना, कैसे देखो, जो एग्जाम्पल बहुत कॉमन है. वी आर हैविंग वन आइस क्यूब. एज आई विल हीट द आइस क्यूब व्हाट विल हैपन, इट टर्न्स इनटू वाटर. है ना, मतलब ये सॉलिड था, सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड. Again, if I am going to provide some more heat, then what will happen? This water is converting into water vapor. मतलब क्या हुआ, सॉलिड को हीट करा तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को हीट करा तो गैस में कन्वर्ट हुआ. मीन्स द सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस टू गैस, और वाइस वर्सा. इफ आई एम गोइंग टू पुट दिस वेपर, वेपर को कंडेंस करा, क्या होगा, लिक्विड बनेगा. लिक्विड को मतलब मेरे पास तपेली में पानी है उबलता हुआ, है ना. इफ आई एम गोइंग टू पुट वन plate over there, then what will happen? After sometimes you can see the water droplets over the plate. Means you can say that the water vapor is converting into liquid. और इस वाटर को मैंने आइस ट्रे में लेके फ्रिज में रख दिया. what you can see after sometimes it changes to ice. means what we can say, the matter can change its state. It may be solid to liquid, liquid to gas, or gas to liquid and liquid to solid. Okay, but during this complete process what is there, there is a change in temperature. यहाँ मैं हीट दे रही हूँ, है ना, यहाँ पर मैं हीट ले लूंगी. आई हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, है ना. वेपर बनती किस पे, 100 डिग्री पे. ठीक है, 100 डिग्री से कम होगा तो क्या मिलेगा, वाटर. और 0 डिग्री पे जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, आइस. Got this? Means when we increase the temperature, your solid changes to liquid and liquid changes to gas. But as we decrease the temperature from solid gas, then changes to liquid and liquid changes to solid. Okay? So पूरा खेल किसका है, पूरा खेल है तुम्हारे टेम्परेचर का. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है देखो. In the ice cube, we know that in solid all the particles are very closely packed and they are have strong intermolecular attraction force. है ना, इनके बीच में बहुत strong force of attraction है. If I will provide the heat, जैसे ही मैंने हीट दी, मैंने तुमको बता रखा है when we give the heat then kinetic energy of the molecule increases. है ना, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी. अब एनर्जी बढ़ेगी तो वो चुपचाप अपनी जगह पे नहीं बैठेंगे. then they start vibrating. as they starts vibrating what will happen, the attraction force between the molecule is going to be weakens. है ना, attraction force will be weak. if the attraction force will weak means they start moving slowly. और जैसे ही ये मूव करना शुरू करेंगे, द गैप विल बी देयर इन द मॉलिक्यूल्स एंड द स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, तो whenever भी the solid changes to liquid state, the process is known as your fusion. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, solid changes to liquid, we called it as a fusion. ठीक है, so during the process of fusion or another name is given melting. melting सबको पता है, liquid क्या हो गया, आइस सॉलिड था, सॉलिड का लिक्विड बना, लिक्विड बना मतलब मेल्ट हो गया. वी कॉल्ड इट एज ए मेल्टिंग. ओके, एंड द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. कंडीशन क्या होना चाहिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर. द पॉइंट नहीं लिखना, अधिकतर बच्चे पॉइंट लिख देते हैं एंड देयर लूज देयर मार्क्स. सो व्हाट इज देयर टेम्परेचर, the temperature at which solid starts melting at the atmospheric pressure is known as the melting point. ठीक है, अब देखो मैंने ये लिया आइस क्यूब. ठीक, ये तुम्हारा बर्नर है, ये टेम्परेचर इज देयर. किससे ले रहे टेम्परेचर, थर्मामीटर से, है ना. व्हेन द आइस क्यूब्स आर देयर द टेम्परेचर विल बी नोटेड टू 0 डिग्री. कितना है टेम्परेचर, जैसे ही आइस को मैंने क्रश करा और इसके अंदर रख दिया, then I noted the temperature and temperature is 0 degree. Okay, means the complete ice is there. now I am going to start heating this. जैसे ही मैं इसको हीट करना शुरू करती हूँ क्या होगा, the molecule will absorb the heat and their kinetic energy increases. as the kinetic energy increase the molecule starts vibrating and they want to move apart. है, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे. और जैसे ही दूर जाना चाहेंगे the melting will start. मतलब अब मेरे पास दोनों चीज़ें इसमें क्या क्या है, I have solid as well as liquid both. means दोनों स्टेट है यहाँ पर, solid और liquid. again I am going to note the temperature but still it is 0 डिग्री. है ना, अब देखो जादू हो गया यहाँ पर. क्या जादू हुआ, मैंने तो हीट दे रही हूँ, I am providing the heat,
बट स्टिल द टेम्परेचर रिमेन्स 0 डिग्री. कायदा क्या कहता है? द टेम्परेचर हैज टू बी रेज बट इट विल रिमेन 0 डिग्री. वाई इट इज सो? हो गई जादू की बात. Because we are continuously providing the heat, but the temperature is not going to be increased. It will remain same till all the ice get melted into liquid state. Why it is so? The answer is whatever be the extra heat which we are providing, that heat is used up to break the bonds or attraction force between the water molecules और ice molecule. ice molecule के बीच में जो water के molecule है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने में वो हीट एब्जॉर्ब हो गई है ना. सो दैट इज नोन एज द हिडन हीट. छुपी हुई हीट है, अपने को तो दिखी नहीं रही बिकॉज द टेम्परेचर इज सेम. एंड दिस हिडन हीट इज नोन एज योर व्हाट वी कॉल्ड इट एज ए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या नाम दिया इसको मैंने? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट इज? सो व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द हिडन हीट. हिडन हीट मतलब छुपी हुई हीट जो अपने को यहाँ पर थर्मामीटर में नहीं दिख रही है, बट स्टिल द हीट इज सप्लाइड एंड वेयर इट इज यूटिलाइजिंग वी डोंट नो, बट वी नो है ना. कहाँ गई वो हीट? वो हीट कहाँ गई? वो हीट यहाँ पर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके उनको आगे मूव करने, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने का काम कर देंगे. ठीक है. सो दैट हीट इज नोन एज द हिडन हीट and that is known as what the name is given, latent heat of fusion. है ना. अब definition देखो ये latent heat of fusion की. The amount of heat energy required to change कितना 1 kilogram of solid to liquid है ना. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 1 kilogram of solid to liquid at its melting point and at the 1 atmospheric pressure. जो normal atmospheric pressure होता है वो कितना होता है? 1 होता है ना. So this is known as your latent heat of fusion. Got this now? तो अपन ने क्या देखा? The temperature will remain same. अब ये पूरा ice melt हो गया और किस में convert हो गया? Now it is converting into liquid water. ठीक. ये water में convert हो गया. water में convert हो गया. Temperature changes and now as the water start heating, गर्म तो हो ही रहा है वो. जैसे जैसे गर्म हो रहा है now we can see the change in temperature. The temperature start rising very fast. एकदम फट 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 तेजी से जाने लगा क्योंकि अब स्टेट चेंज नहीं हो रही है ना. तो कहीं भी ये नहीं हो रहा है कि भाई मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं ना. यहाँ पर तुम देखते हो हमेशा ये दाने दाने रहते हैं छोटे छोटे. जब गर्म करते हैं फिर ये ऊपर जाते हैं. यहाँ पर बबल बनता है, बबल फूटता है और फिर वेपर निकलती है ना. तो अब दूसरी प्रोसेस क्या हो गई? ये तो फ्यूजन हो गई. दूसरी क्या होगा? वाटर चेंजेस टू वेपर स्टेट. वेपर मतलब लिक्विड टू गैस एंड द प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन. क्या बोला इस प्रोसेस को? वेपर का बन रहा है, देन वी कॉल्ड इट एज ए वेपोराइजेशन. क्लियर नाउ? सो ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन यहाँ पर आया टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया ना. मतलब ये टेम्परेचर क्या कहलाता है? वी कॉल्ड इट एज ए बॉइलिंग पॉइंट. अब मैंने इसको हीट करना शुरू करा. जैसे ही मैं हीट कर रही हूँ देखो वेपर में हमेशा मॉलिक्यूल एक एक करके ऊपर जाता है, दोनों दोस्त साथ में नहीं जाते. यहाँ पर इनमें अट्रैक्शन फोर्स है. अगेन द अट्रैक्शन फोर्स विल ब्रेक. मीन्स क्या होगा? ये जब तक पूरी वेपर उड़ के नहीं चली जाती तब तक वाटर का टेम्परेचर रेज होगा. पहले रेज होगा तब तक रेज होके, और जब जैसे ही वाटर स्टार्ट करेगा बॉइलिंग द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल द वाटर गेट्स वेपोराइज. ठीक है. तो यहाँ भी वही चीज आ गई. पहले तो टेम्परेचर बढ़ा बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेज इन द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग एनर्जी एंड दैट एनर्जी वी कैन सी. बट एज द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट टू 100 डिग्री मीन्स वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या हो गई? एक प्रोसेस हो गई जैसे मेल्टिंग की है ना. तो जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है क्या होता है? एज द बॉइलिंग विल स्टार्ट द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. अगेन द सेम थिंग. अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया पर स्टिल द हीट इज सप्लाइड वेयर द हीट इज गॉन. अब जो हीट हो गई उसको क्या बोलते हैं? ये फ्यूजन की प्रोसेस थी. इस प्रोसेस को क्या बोला था? वेपोराइजेशन. देन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वी कॉल्ड इट एज है ना. क्या बोलेंगे? ठीक है. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब वही छुपी हुई हीट कहाँ जा रही है? जब वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में है ना. तो वही मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में दैट हीट विल बी यूज्ड एंड दैट इज नोन एज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. डेफिनेशन क्या करते हैं? 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड
changes to gas. Okay, कब? At its boiling point and atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization. क्लियर है दोनों चीजें? तो हिडन हीट जो भी है वो कहाँ जाती है? टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस और ऑफ वाटर एंड द स्टेट विल चेंजेस. पहली स्टेट को क्या बोला? फ्यूजन और मेल्टिंग. दूसरी को क्या बोला? वेपोराइजेशन. ठीक है, अब उल्टा कर दें. वेपर से ये बना दे, क्या कहोगे? प्रोसेस को कंडेंसेशन, है ना. और वाटर से आइस बना दे मतलब फ्रीज कर दिया, क्या बोले? फ्रीजिंग. ठीक है. सो 1 2 3 4 प्रोसेसेस आ गए. क्लियर एवरीथिंग? ये दोनों डेफिनेशन याद होना चाहिए. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. दूसरी चीज हीट, हिडन हीट कहाँ गई, क्यों गई? दैट शुड बी, you must know that it is going to be utilized to break the attraction force between ice molecule or water molecules, है ना. So the temperature will remain same. Clear? So we can say the state will change. और ये सारी definitions I will give in the description part. So you note down all this from the description part. Okay? Thank you.